morning, students. How are you? Children, we have completed our April course target. Lesson 1 in history, lesson 1 in geography, and lesson 1 in political science. I hope you all have completed your work in your fair notebooks. So you have to fill some formalities in your fair notebook. The first you have to write your name, your class teacher name, your subject teacher name, and your SR number, your roll number, whatever every year you are doing, like that you had to do now also. And the foremost thing is that the page numbers also you have to write. Okay, and now today in May timetable I will teach you about the second lesson of geography, that physical features of India. The physical features of India. So you all know the physical features of India in class 8th, 7th, 6th, in the all classes you have to study about that things, the physical features of India. But in ninth something in explain you have to study about these physical features. So you all know about that कि India is all major physical features on the earth. India is a vast country and it is having many types of physical features. Physical features like that we are having our body, and we in our body we are having some features like eyes, nose, ears. You all know like that. तो उसी तरह हमारे भारत के भी कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जो हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं. It just like a mountains, plateaus, desert, plains area, rivers, all like that, and islands. ये हमारे क्या है, हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं. इन ऑल दीज फिजिकल फीचर यू हैव टू नो in the explanation. In explain you have to know about all these physical features कि Himalayas क्या है, how it made, how the plains are made, how the plateaus are made, प्लेन्स में कौन सा सॉइल पाया जाता है. तो ये सब चीज़ें आप अपने 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस. और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ में सबसे पुराना लैंड मास है हमारा प्लेट्यू रीजन, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है. पेनिनसुलर मैंने आपको लास्ट फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था कि दैट विच इज सराउंडेड 3 साइड्स बाय वाटर, दैट इज द पेनिनसुलर. और इंडिया हमारी पेनिनसुलर कंट्री है. क्यों? बिकॉज वन साइड इट इज़ हैविंग अरेबियन सी, वन साइड इट इज़ हैविंग बे ऑफ बंगाल, एंड द डाउन साइड द साउथ साइड इट इज़ हैविंग द व्हाट इंडियन ओशन. तो 3 साइड्स ये पानी से फिल हुआ है. दैट्स वाई इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री. तो दैट इज अवर ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया. तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है जो सबसे पुराना है. तो नाउ आई विल टेल यू इन दिस लेसन द फिजिकल features, how many physical features we are having. So we are having 6 physical features to in our India. That first is the Himalayan mountains, second the northern plains. हमारा जो plains है that is in the north side. Himalayas also in the north side. And then the peninsular plateau, जो मैंने अभी आपको बताया, जो peninsular plateau है वो हमारा down side में है. It means south side में. ठीक है. Then Indian desert. You all know about the desert in the west, in the Rajasthan side. The coastal plains. Coastal plains मतलब coastal area also I have told you in the first chapter that what is the coastal area which is near of the ocean या which is near of the water bodies. जो area हमारा वाटर बॉडीज़ के आसपास होता है दैट इज़ द कोस्टल एरिया. तो हमारे वहाँ पर कुछ प्लेन्स एरिया भी होते हैं जो समुद्र के किनारे हैं विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर द एग्रीकल्चर. तो हमारे कोस्टल प्लेन ऑल्सो द फिजिकल फीचर. एंड द लास्ट वन इज़ द आइलैंड. तो आइलैंड ऑल्सो यू ऑल नो दैट द 2 groups of island, the Lakshadweep island and Andaman and Nicobar island. So these 2 islands we are having, and it is most beautiful island, and it is the physical feature also of our India. And now we will discuss all these physical features in detail. So you all know and learn all these 6 physical features of India. Some students don't know about these physical features, और जब क्लास में पूछते हैं तो they also don't know again. So you have to learn all these physical features serial wise. The first mountain, then northern plains, then peninsular plateau, like that you have to
learn. तो first we will discuss about the Himalayan mountains कि what is the Himalayan mountain. तो it is are stretched over the northern borders of India. You all know that in हमारा जो Himalayan mountains है that is in the north side in the map में नॉर्थ साइड में है. इट मीन्स ऊपर की साइड में है, ऊपर नॉर्थ, देन डाउन साउथ, देन वेस्ट, देन ईस्ट. तो हमारे नॉर्थ साउथ में साइड में हमारा क्या है, पूरा हिमालयन माउंटेन्स एंड इस स्ट्रेचेस ऑल्सो एंड इट इज़ द बॉर्डर ऑफ इंडिया ऑल्सो. ये हमारा नॉर्थन बॉर्डर है और दैट ऑल्सो सेव अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स विच कम फ्रॉम द नॉर्थन साइड. अगर हमारा हिमालयाज नॉर्थ साइड में नहीं होता, जो तो ठंडी हवाएं नॉर्थ साइड से आती हैं, तो वो हमारे भारत को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती, कोल्ड कंट्री बना देती. तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ बॉर्डर. इट ऑल्सो save us from the cold winds which comes from the north side, and these mountain ranges run in a west ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंदस टू द ब्रह्मपुत्र. और ये जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं दैट स्ट्रेचेज या दैट रेंजेस रन इन या ये किधर से किधर की तरफ है, ये वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ है. इट मीन्स है तो नॉर्थ साइड में, बट वेस्ट से स्टार्ट होकर ये हमारी कहाँ तक फैली हुई है, ये फैली हुई है ईस्ट साइड तक. ठीक है. तो इंदस रिवर भी फ्लो हो रही है हमारी कहाँ से, हिमालयन माउंटेन से. देन ब्रह्मपुत्र जो हमारी ईस्ट साइड में फ्लो करती है, दैट ऑल्सो इन द Himalayan region, also comes in the from the Himalayan region. And the Himalayan consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. और जो हमारा Himalayan mountains है, it is also having the 3 parallel ranges. उसमें हमारी 3 parallel ranges हैं. मतलब हिमालय एक हिमालय नहीं है, there are 3 types of Himalayan ranges. जो पर्वत श्रेणी है वो 3 भागों में बटी हुई है हमारी. The northernmost range is known as the Great और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री. जो हमारा नॉर्थन मोस्ट रेंजेस है, यानी जो हमारा प्रॉपर नॉर्थ साइड में है, दैट इज़ द ग्रेटर और इनर हिमालयाज, वो हमारा सबसे बड़ा हिमालय है, दैट इज़ नोन एज हिमाद्री. उसको हिमाद्री क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ स्नो थ्रू आउट द ईयर. वो पूरे साल भर हमारा स्नो से भरा होता है और वहाँ पर हमारे आइसबर्ग्स भी होते हैं. एंड देन देयर इज़ द also the mountains of the ice के mountains होते हैं हमारे, glaciers also there. तो it is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 meters. तो हमारे हिमाद्री रेंजेस में जो हमारी माउंटेन पीक्स हैं, दैट आर द हाइट ऑफ 6000 मीटर, वो हमारी हाइट्स हैं. एंड द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर symmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. और जितना भी हमारा हिमालयाज बना हुआ है, that is made of the granite. ही ग्रेनाइट से composed हुआ है हमारा. and then it fold the great Himalaya. सिमेट्रिकल रेंजेस हैं ये हमारी. इट मीन्स कि इट इज़ नोन एज द, जो हमारा हिमाद्री है, दैट इज़ नोन एज द ग्रेट हिमालय. ये हमारा ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है. एंड द रेंज लेइंग टू द साउथ of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. It means नॉर्थ में हमारा सबसे ऊपर हमारा क्या हो गया, हिमाद्री, which is full of snow throughout the years. Glaciers also here and all the rivers also come from Himadri ranges. ठीक है. जो हमारी गंगा रिवर आती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स, यमुना फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स, दीज ऑल आर ग्लेशियर्स इन द हिमाद्री रीजन. फिर उसके साउथ में आ जाओ, यानी नॉर्थ से थोड़ा नीचे आ जाओ साउथ की साइड में, तो साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स. तो साउथ की साइड में भी हमारा हिमाद्री से नीचे एक हिमालयन माउंटेन रेंज है, दैट इज नोन एज हिमाचल. इट मीन्स लेसर हिमालय. इट मीन्स हिमाद्री से नीचे हमारा कौन सा हिमालय है, हिमालयन रेंजेस है, दैट हिमाचल हिमालयन रेंजेस. Like that Pir Panjal range forms the longest and the most important range of the that Himachal. जो हमारी पिर पंजल रेंजेस हैं, it is the name of the Himalayan peak that is that found in the Himachal ranges. The outermost range of the Himalaya is called the Shivalik. और फिर जो outermost है, यानी फर्स्ट हिमाद्री हो गई, then हिमाचल रेंजेस, then शिवालिक रेंजेस.
तो आउटर मोस्ट रेंज हमारे शिवालिक रेंजेस हो गई। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, और जो हमारी शिवालिक रेंजेस हैं दीज आर फुल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी हुई हैं। एंड द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज द ड्यून्स, और उसमें जो ड्यून्स बनी हुई हैं, ड्यून्स मतलब जो हमारा हिमालयाज हैं, लेसर हिमालयाज यानी हमारे हिमाचल रेंजेस और हमारे शिवालिक रेंजेस के बीच में जितनी भी वैलीज हैं दीज आर नोन एज द दून्स। एंड देहरादून्स, कोटी डून्स एंड पातली डून्स आर सम ऑफ द वेल नोन ड्यून्स, ये हमारे कुछ वेल नोन ड्यून्स हैं जो शिवालिक रेंजेस और हिमाचल रेंजेस के बीच में है। जैसे कि हिमाचल रेंजेस और शिवालिक रेंजेस, इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, देहरादून, जो आप सब लोग जानते हैं। तो उनके बीच में जो भी वैलीज बन जाती हैं, जो घाटियाँ बन जाती हैं, दैट इज नोन एज द दून्स, वो दून्स के नाम से फेमस होती हैं। तो इट मीन्स हमारी कितनी 3 रेंजेस हैं हमारे हिमालयाज की। द फर्स्ट नॉर्थ मोस्ट range is the Himadri ranges, which is full of the snow, glaciers are there, all the rivers also coming from the Himadri ranges. Then in the south of the Himadri our Himachal ranges is there, and then after Himachal then it is the Shivalik ranges. Okay, and the Himachal and the Shivalik ranges जो बीच में वैलीज होती हैं, जो गैप होता है, that is known as the dunes, वो हमारे dunes के नाम से फेमस होता है। फॉर एग्जाम्पल द हमारा देहरादून। तो दीज हिमालय हैव ऑल्सो बीन डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरह से हमारे जो हिमालयन रेंजेस हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड हो चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू लिसन केयरफुली दीज टॉपिक ऑफ द हिमालय एंड राइट द नोट्स ऑल्सो। जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है यू हैव टू राइट द नोट्स इन अ सेपरेट कॉपी। आप एक छोटी पतली कॉपी बनाएंगे जिसमें आप सारे चैप्टर्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के आप उसमें नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू।